ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਮਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿੰਘ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨਾਉ ਨਿਦਿਆ ਬਤਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਪੰਜਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਬਾਖ ਦੇ ਕਰਨ ਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਗੁੱਤਰੀਆਂ ਡਮਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ
ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਬੰਦ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਹਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੋ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਕਬੀਰ ਦਾਨ ਵਿਸਾਰ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿਰਮ ਰੱਖਾਂ ਜੀ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਰੰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੀਵਾ ਮਾਤੂ ਕੀ ਮਾਤ ਤੇ ਪਾਤਨਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਦੇ ਉੱਡਿਆਂ ਦੀ ਓੜ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬਿਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਰ ਕਲਪਨੇ ਪਾਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਆਦਰਨ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜਦੇ ਗੱਜਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਵੱਠੋ ਪੈਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਭੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲਬਦੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी। दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। 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 बिगड़े हुए इंसान थे, शैतान की संतान थे। हो लेकिन ब्रदर जो भी कहो, वो यार ही तो जान थे। कॉलेज की कुड़ी से करने आंखें चार के दिन थे। आए जिंदगी में पहले पहले प्यार के दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे। करना मना थे काम जो हमने किया, हर काम वो। जिनकी नहीं थी परमिशन, सारे किए इंतजाम वो। बेढब हरकतों के भूत सर पे सवार के दिन थे। हद करने के यारों आर या फिर पार के दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे। हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे। जीवन है इस जीवन का, यही है यही है यही है रंग रूप। ये जीवन है इस जीवन का, यही है यही है यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियाँ। यही है यही है यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है।
ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। ये भी न जाने, वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने। मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना। छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना। सुबह सी रातें हो, जब से मिला है तू, दिल को मिला सुकून। तू ही राह मेरी, तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा घर है। चैन न जाने, दर्द न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने। मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना। छोड़ा ही घर बार मेरा, तू ही है संसार मेरा। ये पागल सा है प्यार मेरा, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा। ठीक है जी। Respected sisters, Naresh sir, father and mother of Mukesh sir, and other family members of Mukesh sir, and other relatives, and other all teachers and staff members of primary school and senior secondary school.
I from GSSS Tadlana welcome you all from GSSS Tadlana staff members and also from primary school staff members. सभी का बहुत बहुत स्वागत विद्यालय। आज के हमारे हीरो मुकेश सर, मैं सिर्फ यही कहूंगी, सर क्या बात है, सर का फेवरेट डायलॉग, क्योंकि सर जब भी किसी बच्चे का कोई भी मोटिवेशन करना हो, किसी टीचर का कोई काम देखना हो या कोई भी कहीं पर भी सर को कोई काम किसी बच्चे का, टीचर का, स्कूल में कोई भी पसंद आए तो सर का सबसे पहला स्टेटमेंट यही है, क्या बात। फेवरेट डायलॉग। सबसे पहले मैं अपने विद्यालय की बच्चियों को बुलाऊंगी जो कि सभी परिवार के सदस्यों जो भी हमारे विद्यालय के इस प्रांगण में पधारे हैं उन सबके स्वागत के लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा आप आए अतिथियों ने सरताज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज है, देवों की भांति पूजन करें आज हम, देवों की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। उसमें मेरे पुराने सखा में परेश सर नजर आएंगे, तो आपने ये बताना है कौन से हैं? गाने में भरे थे, इसमें वॉल्यूम का कुछ इशू लग रहा है। कश्मीर का शिकारा, वैष्णो देवी। हमारी शुरुआत हुई थी दोनों में, ये भाई अली साहब, ये फादर साहब सगाई के टाइम किया है। भाई हम लोग
ये आवाज़ किसकी है? अभी आवाज आई बड़े पापा की वो भी अंकल है, ये हमारा भाई है। ये बेंगलोर। जी सर, तेज वाले पर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, लेकिन यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। और बहुत बहुत प्रणाम है सर के पेरेंट्स को, क्योंकि सर ने जो संस्कार अपने पेरेंट्स से लिए, आज सभी उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ उपस्थित हैं। तो वाकई सर बहुत ना केवल हार्ड वर्किंग हैं, सर बहुत कोऑपरेटिव हैं, सर बहुत हम्बल हैं। और सर का जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है बच्चों के लिए और सिंपैथेटिक है। तो जितने भी गुणों का बखान किया जाए वो बहुत कम है। और नमन है ऐसे पेरेंट्स को भी जिन्होंने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दिए। और वाकई सर बहुत ही अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने अचीव किया है वो उन्हीं गुणों के बल पर कर पाए। तो मैं अभी तक से सर ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो उनकी जर्नी है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हो सकता है बहुत सारे टीचर्स को मालूम हो, लेकिन मैं बता देती हूँ कि सर ने अपना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैरियर था वो 1994 18 मार्च 1994 को जो हाई स्कूल नंगलखेड़ी से अपना स्टार्ट किया था और अब वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उसके बाद 20 मई 1994 को ही सर को जो मैथ्स मास्टर की पोस्ट थी, रेगुलर पोस्ट पर सर अपॉइंट हो गए। और उसके बाद जो सर ने जो आजकल टीजीटी मैथ्स की पोस्ट कही जाती है, उसके बाद सर ने झट्टीपुर स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल झट्टीपुर वहाँ पर ज्वाइन किया और वहाँ पर वो जून 1998 तक अपनी सेवाएं उन्होंने दी। उसके बाद सर ने 1998 से 2006 तक अपनी जो सेवाएं थी वो बबैल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बबैल में अपनी सेवाएं दी। और इन स्कूलों में जहाँ पर भी सर ने काम किया तो वहाँ पर एक भी टीचर जो सर के संपर्क में आया, कोई एक टीचर भी ऐसा नहीं होगा जो सर की जो आत्मीयता है उससे परिचित ना हो। उसके बाद 2006 के बाद से लेकर 2016 तक सर ने बड़ौली GSSS बड़ौली में अपनी सेवाएं दी। मेरे ख्याल से सर का ये मैक्सिमम 10 इयर्स का स्पैन बड़ौली स्कूल में ही था और बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, बहुत ही बेस्ट, क्योंकि वहाँ से जो बड़ौली के भी एक दो टीचर्स जिन्होंने सर के साथ काम किया है उन्होंने बताया है कि सर ने हमेशा जो टीचर्स बिल्कुल अननोन थे, प्रोसीजर्स से, काम करने के तरीकों से, डिपार्टमेंट में एकदम न्यू थे, उनकी भी अपने दिल से बहुत हेल्प की, उनको बच्चों की तरह एक चीज़ सिखाई जो उनके लिए भूलना असंभव है। उसके बाद सर का प्रमोशन हुआ बड़ौली स्कूल में, जब सर थे वहाँ से उनका प्रमोशन हुआ PGT मैथ्स की पोस्ट पर और सर ने उसके बाद दरियापुर स्कूल ज्वाइन किया। वहाँ से उसके बाद 8 अगस्त को सर ने तहसील कैंप 2016 में सर ने यहाँ पर 16 में जून 16 में तहसील कैंप का सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन किया अप टू अगस्त 2022 और 30 अगस्त ये इसके बाद 2022 के बाद से सर हमारे स्कूल में हैं। 2016 से 22 तक सर तहसील कैंप स्कूल में।
पूरा जो ड्यूरेशन रहा सर का पानीपत ब्लॉक में, पानीपत के आसपास के स्कूलों में, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। केवल अध्यापकों के बीच में नहीं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, डीओस और पीओस जो भी अधिकारी हैं, उनके संपर्क में जो भी रहे हैं, जो भी जिनके भी अंडर में सर ने काम किया है, जिन्होंने टीचर्स ने सर के साथ काम किया है, वो सभी बहुत ही सर की जो काम करने की कार्यशैली है और कार्य प्रणाली को कभी भूल नहीं सकते। और बच्चों के लिए अगर बात की जाए तो सर का डेडिकेशन, सर का जो डिवोशन है वो काबिल तारीफ है। और जो आने वाली जनरेशन है, जैसे कि हमारे बीच में भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो न्यूली ज्वाइन हैं, वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं सर के कार्य करने के तरीकों से। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सर के बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इनमें सर के जो ब्रदर हैं श्री रमेश जी, उनका हम स्वागत करते हैं। सर के बाबूजी हैं, सर की मदर हैं श्रीमती कौशल्या देवी, और सर की डॉटर्स हैं मुस्कान और सिमरन। सर के सन हैं लक्ष्य सन है, एक लीला है, और सिस्टर्स हैं मीना एंड दीप्ति। तो इनमें से जो भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, कोई कहने की बात नहीं है कि ये भी अपने अपने विचार रखना चाहेंगे। और आज सर जिस तरह से हम सोचते हैं कि सर, मैं सर की मैडम से पूछना चाहूँगी पहले कि सर जितने सिंपल, सोबर, जितने हम्बल दिखते हैं, क्या घर में भी वैसे ही हैं? एक बात और, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है ये कहने में कि सर का नेचर जैसा अंदर से दिखता है वैसे सर बाहर से भी अपना बिहेव रखते हैं, और ऐसा कुछ डबल उनका रोल कहीं पर भी नहीं है, ना विद्यालय में, ना घर में, और ना ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ। मैं भी पर्सनली 2022 में ही जब दोबारा से इस विद्यालय में ज्वाइन किया, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती थी, कार्य करने के तरीके। तो सर ने विलिंगली खुद से आगे बिना हेल्प मांगते हुए भी सर ने हेल्प की, उसके लिए मैं भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर की मदर एक भजन सुनाना चाहती हैं, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर की मदर का, और मैं चाहती हूँ तालियों की गड़गड़ाहट से तेरी बंसी नुकन सच मोरिया, तेरी बंसी नुकन सच मोरिया, तारा के शक्तियाँ गोरिया, सच कर तारा पैरा विच मोरिया, कोई के दीवानी बड़ी सतानी मोरिया, तेरी बंसी नुकन वे, तेरी बंसी नुकन वे, तू बहन तो बजरा नवीरा वे, तू बहन तो बजरा नवीरा वे, हथ कर तारा तेरा विच मोरिया, तेरी कोई ये दीवानी बड़ी मस्तानी मैं रिक्वेस्ट करूँगी मुकेश सर के फादर साहब जी से, जो भी अपने चार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गवर्नमेंट सीनियर स्कूल गजराना के प्रिंसिपल साहबान व टीचर स्टाफगण, जय हिंद। मैं छोटी सी जीवनी अपने बच्चे के आपके सम्मुख लिखने का। देश का जन्म 10 अक्टूबर यानी 10 अगस्त 1966 10 अक्टूबर 1966 को हुआ।
जब ये सिर्फ 3.5-4 साल का था तो इसको पढ़ाई का इतना शौक था, अपनी बुआ की किताबें खींच लेनी, कभी पाठ देनी, कभी कुछ कर देनी। मैंने कहा अपनी बहन को किताबें पर रखा कर भाई, अब निशाना हो गया, अब उससे कोई करेगा, कभी पाठ देनी। मैंने कहा इसके स्कूल में दाखिल कराया। वो बोले जी स्कूल में 5 साल की शुरुआत 5 साल से काम करता नहीं लेती, आज तो LKG आ गया, वो इसमें हमारे टाइम में तो 4.5 साल का वो। मैंने कहा आपको भर्ती कराया भाई, वो टीचर हमारी बहन इस सरकारी स्कूल में टीचर। हम गए दोनों, उन्होंने बोला कितनी उम्र है, हमने उम्र बताई 10.5 साल। 10 अप्रैल 1971 तो उन्होंने कहा कि 5 साल होने चाहिए। मेरी बहन ने पता नहीं क्या सिफारिश करी, स्टाफ मेंबर होते हैं स्टूडेंट को पता होता है, उन्होंने कोई ऐसा टिकट बताया 2 से महीने बाद कर लेना इसको काम कर, अभी तो आने दो हो गया। इसके बाद उन्हें बड़ी लगन से प्राइमरी से पास किया, फिर बड़ी लगन से मिडिल। जब 7वीं जमात में पढ़ता था ये, इसको लगन लग गई अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना, खुद भी रात को पढ़ना, होमवर्क भी करना, खुद भी पढ़ना, छोटे बहन भाइयों को पढ़ना। जब हमने देखा रात के 11 बजे, मैंने कहा भाई सो जाओ, सुबह स्कूल है, तब सोना। फिर 2 दिन बाद देखे 11:30 बजे, मैंने कहा भाई 11:30 बजे बच्चों को सोने छोटे हैं, 1 बजे 12 बजे मैं देखा लाइट लगी है, मैंने कहा भाई चलिए बस करो और छोड़ो भले स्कूल भाई ने सुबह स्कूल जाना, तो तब इसमें बस करते। उसके बाद इसके डॉक्टर करी, BA करी, BSc करी, B.Ed करी, MA करी। प्राइवेट स्कूल SPI स्कूल में इसको टीचिंग मिली। हमारी कोशिश तो गवर्नमेंट स्कूल में थी पूरी, जैसे पेपर निकलना, कुछ भी होना, फॉर्म निकलना शुरू करना। उसके बाद DAV स्कूल मॉडल स्कूल प्राइवेट। उसके बाद 10 मार्च 1994 में इसकी शादी, 10 मार्च 1994 इसकी शादी हुई और 13 मार्च को चंडीगढ़ से लेटर आ गए इसकी विज्ञान नौकरी। तो मैंने अपने मौला ने कहा ये तेरे पैर अच्छे पड़े हमारे घर में, तो इसकी सरकारी बात। तो उसके बाद 18 को जारी थी, 18 मार्च को जाने करी रह गया। मेरा छोटी बहन गई, हमारा छोटा भाई वो भी सरकारी, दोनों के जाकर इसकी देने पर वो दिन और आज दिन 3 साल 7 महीने 13 दिन हो गए। सर इसको हमें बहुत दिन का खुश हुआ रिटायरमेंट, इसको देख के बहुत दिन खुश हुआ। इस रिटायरमेंट के ऊपर हमारे घर रोज बधाइयाँ आ रही है, केक ला रहे हैं और केक ला रहे मेरा गला मैं बोला तो बहुत कुछ था, वजह से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी बतानी पड़ती है। अपनी दादी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, मैंने नहीं करी, इसने करी। कोई इतनी सेवा देती थी, तेरे बच्चे बड़े हो गए, तेरा नाम करे, उसको सबको मैंने सेवा कम करी, इसकी जगह अपनी दादी की। अब देखिए माँ बाप की सेवा करता है, दादा बस सामने 7 साल की पूरी सेवा करता है, गरीब दुखियों की पूरी सेवा करता है और पूरा जिसको बोलते हैं जो लायक है, लायक के साथ अब जैसा कि अभी फादर साहब इनके बता के गए होंगे सर के कि इनके मन में सेवा भाव है, वो हमें दिखाई देता है इनका टेन्योर से कि इन्होंने मोर देन 30 इयर्स का जो टाइम था एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया। इसमें मैं नोट कर रही थी कि इन्होंने बच्चों की जो स्टडीज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इनका मोस्टली किसी भी स्कूल में आना जाना जून के मंथ में ही हुआ। ये बात ठीक है सर? तो उस समय क्योंकि कोई ऐसा भी नहीं होता कि हमारा सिलेबस ज़्यादा हुआ नहीं होता, बच्चे इतने ज़्यादा यूज टू भी नहीं होते टीचर के, तो टोटल टेन्योर में जून के मंथ में ही इनका कहीं से भी रिलीविंग है और जून के मंथ में ही मोस्टली ज्वाइनिंग है। तो इससे भी ये पता चलता है कि इन्होंने कहीं भी किसी भी विद्यालय में किसी भी तरह से बच्चों की स्टडीज़ को भी डिस्टर्ब होने का मौका नोइंगली या अननोइंगली नहीं मिला। तो हम एप्रिशिएट करते हैं सर के इस सेवा भाव को भी, और जैसे कहते हैं हमारी नियत होती है वैसी बरकत भी हो जाती है। तो जैसे जैसे सर की सोच थी वैसे वैसे सर को टाइम मिला और सर ने बच्चों के लिए अपना डेडिकेशन दिया। अब मैं सर के
भाई साहब श्री रमेश जी से उनको गुजारिश करूंगी वो आकर 2 शब्द कहें। पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर, कभी आपसे मुकेश सर ने टॉफी या चॉकलेट के लिए तो लड़ाई नहीं की होगी, क्योंकि वो सबसे छोटी से छोटी चीज है, और अगर कोई बच्चा टॉफी या चॉकलेट के लिए नहीं लड़ सकता तो वो किसी भी चीज के लिए नहीं लड़ सकता। आइए सर प्लीज। प्रिंसिपल साहब एंड खास साहब, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मेरे बड़े भाई की रिटायरमेंट है। मेरे भाई ने हमेशा मुझे मार्गदर्शन किया है, हमेशा मुझे प्रेरित किया है। मैं भी जो शुरू से मैं कॉपी करता हूँ अपने भाई को, है भाई कैसे बोलता है, कहीं जाना होता है मैं भी कोशिश करता हूँ इनको नहीं जाना है, तो हर चीज़ में प्रभावित अपने भाई से। हम दोनों भाई का शुरू से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है। हम लोग छोटे अपने बहुत अध्याय करते थे, अपनी सुना करते थे कि सामने सुनाए। तो मैं आज के दिन अपने भाई को रिटायरमेंट लाइफ के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अच्छी स्वास्थ्य दे, उनको अपने चरणों में याद रखें। हमारी भी सर को और सर की फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये बहुत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सर को थ्रू आउट लाइफ बहुत ही लव, लाफ्टर, हैप्पीनेस और इनको गुड हेल्थ मिलती रहे। अब सर की फैमिली में से कोई और मेंबर अगर कुछ कहना चाहिए। यस सर की मैडम, यस मिसेज। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इतना आपने वार्म वेलकम किया हमारा। उस कोप को नमन है, उस कोप को नमन है जिसने ये लाल जाया, ना सैकड़ों ना हजारों बल्कि लाखों में एक इस दुनिया में आया। हम सबके प्यारे श्री मुकेश कपूर जी को आज मैं उनकी रिटायरमेंट के अवसर पर बधाई देती हूँ। कामना करती हूँ उनका नया जीवन खुशियों, प्यार और आराम से भरा हो, जो मैं करने की उदास क्या होना, निराश क्या होना, उदास क्या होना, निराश क्या होना, फूल का तो मुकद्दर है डाली से जुड़ा होना। पिछले कई दिनों से कपूर साहब डर रहे हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट मेरा क्या होगा, आराम नहीं करने देगी, बैठने नहीं देगी, इसलिए डर। अगर मुझे कोई काम कहेगी मैं कह दूंगा मैं तो रिटायर्ड हूँ, रिटायर्ड मैं क्यों कहूँ। तो आप सब इनको ये बात समझा दो, आप इनको समझा दो कि ये जो इनकी चिंता है, डर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज है, बैठने नहीं दूँ। और आपकी जिंदगी का एक ही बॉस होगा और वो मैं। सर भी अपनी बॉसगिरी से रिटायर हो गया। सर अब मैं ही वो Yes, of course, it is a moment of emotions. Sir, there will be no timetable, no alarm, but you know your boss is always boss. Yes. अब मुकेश सर के सुपुत्र साहब आ रहे हैं, लक्ष्य। I would like to dedicate a song for thanking my father. बाबा तेरा शुक्रिया कैसे अदा मैं करूं, है तूने किए कैसे मैं भरूं, जितना तूने किया किसी ने न उतना किया, अंधेरा सा था ये जहां मेरा रोशन है तूने किया सिर्फ मेरे लिए, हाँ सिर्फ मेरे लिए,
ख्वाहिश तो तेरी भी थी, मगर पूरे हमारे लिए देखा बचपन से है तेरे सर पे तकलीफों का बोझ, लोगों के ताने सुने तूने, फिर भी मेरे सपने बुने। बाबा तेरा शुक्रिया कैसे अदा मैं करूं, जो करम है तूने किए कैसे मैं भरूं। हैप्पी रिटायरमेंट बाबा। So we all are very happy to see that your child is also very thankful and very emotional for you. Now, daughters Meena, daughters Muskan and Simran. Simran. Hello everyone. So all of us usually on spending our long fun Sunday, we are usually unhappy on Mondays since we have to go for our work. But now we have someone here who will be happy even on Mondays. So many congratulations बड़े पापा. Honestly, it's a very proud moment for all of us कि बड़े पापा आज अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा करके स्कूल को बाय बाय कह के हमारे साथ हमेशा के लिए घर चल रहे हैं. But the truth is, बड़े पापा, you were never so tired to get me back. But yes, now you have 6-month holidays twice a year. Get ready for this new chapter. No classes, no attendance, no red pens, no getting late for school. But yes, also no salary. It's time to relax and have fun. Also, we are waiting for your coffee now. Now it's time to say goodbye to tension and hello to pension. All the very best, Bade Papa. May God bless you. Happy retirement and enjoy your permanent weekend. Every day will be Sunday. No wait for Saturday. Okay, now Muskan. So आज मैं आपको बोलना चाहूँगी. So today marks the closing of your one chapter of your life and beginning of another. You have dedicated a huge part of your life to the schools and your students. You have just not told the students, you have also told the students how to live. And without you, these classrooms will surely feel empty and your students will miss both your special scoldings and your encouragement. This retirement brings freedom for you, but for all of us, it is also a bitter truth that because an incredible teacher and mentor is bidding farewell to his class and your school. But it's time to embark on new journeys. We all are excited to see what new adventures and lessons will bring you in this new chapter of your life. Congratulations, Bade Papa. It's time to fully enjoy the free periods of your life. It is very true that we also never saw shouting Mukesh sir. Not at all. Shouting on students in class, in campus, not at all. We have not seen him shouting at all at anyone. Now I would like to request sisters of Mukesh sir, Meena ji. Meera ji. मुझे कुछ ज़्यादा बोलना तो नहीं आता, लेकिन आज भैया रिटायर हुए हैं, मैं भी बोलूँगी. बहुत कुछ सीखा है इनसे हमने. वो पढ़ते हुए जैसे बताया गया है कि बहुत पढ़ते होते थे, तो एक तरह से हमारी इंस्पिरेशन रहे कि हमें भी इनका जैसा बनना है. जैसे ये पढ़ते हैं, जैसे ये सब काम करते हैं, हमें भी उनकी तरह करना है. हम इनकी तरह नहीं बन पाए, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है, क्योंकि बहुत हम्बल रहे हैं. हम शायद इतने नहीं हैं. ये तो मतलब अगर इनके पास हम जाते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो इन्होंने कभी भी हमें ऐसे कोई जवाब नहीं दिया कि गुस्से में बोलना या कुछ भी है. बहुत प्यार से समझाया भी है, बहुत प्यार से पढ़ाया भी है. हम इनसे पढ़े भी हैं
हमसे बड़े वाले सिस्टर हैं, वो सब इनसे बड़े हैं, वो हमें पढ़ाते थे, इनसे हमें मोटिवेशन मिलती थी कि हमें भी टीचर बनना है। आज हम टीचर बन गए हैं इनकी मोटिवेशन से, तो इनको देख देख के ही बहुत कुछ सीखा है। आज ये रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा फीलिंग ऐसी आती है कि रिटायरमेंट के बाद क्या, लेकिन रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ है। एक लाइफ का एक फेस खत्म हुआ है, एक नया फेस अब शुरू होने जा रहा है। अब अपनी फैमिली को टाइम देंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। वही बात कि हर दिन छुट्टी का दिन है, अब कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, हर दिन संडे है। यस, मुकेश सर से सबसे ज़्यादा जो सीखने वाली बात वो यही है, कूल नेचर, बहुत कूल इन एवरी सिचुएशन। कभी हाइपर नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं करते, और हर सिचुएशन को बहुत ही कूल नेचर में, कूल बिल्कुल आराम से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और वो ये नहीं कि पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे टीचर्स की हो, स्कूल की हो या स्टूडेंट्स की। अब मैं प्लीज़ इनवाइट करूँगी दीप्ति जी। यहाँ पर बैठे सभी बुद्धिजीवियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और बीइंग अ मैथ्स टीचर मुझे बहुत अच्छी स्पीच तो बोलनी आती नहीं है। भैया कह रहे थे मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछ लूँगा तो वहाँ पे उसी के आंसर दे दिए। फिर भी मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। भैया ने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारियों को निभाया, ईश्वर की कृपा से सफलतापूर्वक अपनी एक जर्नी को पूरा कर लिया है। और ये एक नई पारी की शुरुआत है, एक पारी समाप्त हुई तो दूसरी पारी की शुरुआत है। शिक्षा के जगत में भैया ने बहुत ख्याति पाई है। और व्यक्तिगत अगर तौर पे बात करूँ मैं, तो कुछ बातें मैं भैया के बारे में बताना चाहती हूँ कि भैया जो है बहुत ही प्रसन्नचित्त इंसान है, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं, बहुत ही नेक दिल, ठीक है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। हम जब भी इनके घर जाया करते थे, ये आके पूछते थे कितने परसेंटेज आए, हम कहते थे ओह कितने परसेंटेज आती है किसी की। और दोनों भैया मिलकर हमें इतना मोटिवेट करते थे, हमें लगता था हम तो कुछ हैं, मतलब इनके घर पहुँच गए थे, कहते थे इतने नंबर में किसी के आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता था हमें। और जब भैया जैसे पढ़ाते होते थे तो मैं भी जाके बैठ जाती थी वहाँ पर, तो पढ़ाते थे, तो कोई क्लास दूसरी होती थी, हम कभी जाते थे, हम भी बैठ जाते थे। तो फिर जैसे मैं कोई क्वेश्चन का आंसर देती थी, मैं उस क्लास की बच्ची नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आंसर दे देती थी। तो फिर भैया मतलब इतना अच्छा और इफेक्टिव वे से भैया पढ़ाते हैं कि मतलब मैं उस लेवल की नहीं हूँ, उस क्लास की नहीं हूँ, तो भी मतलब उनके पढ़ाने के तरीके से हमें समझ में आ जाता है। ये बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है जिसके 150 में से 150 मार्क्स वो अपने बड़ों के आशीर्वाद से। और दूसरी पीढ़ी में भैया की सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब थी और मेरी सबसे आखिरी और दीदी लाइन में। तो मैं भी मैथ्स लेक्चरर के तौर पर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हूँ, पीजीटी मैथमेटिक्स के तौर पर। और जैसे भैया पढ़ाते होते थे तो मैं क्वेश्चन के आंसर देती थी, तो कहते थे चाची इसको नहीं भेजा कर तू, ये बहुत बोलती है बीच में। तो फिर मैं बाहर खड़े होकर खिड़की से सुनती थी, और फिर भैया जब बाहर आते थे मैं बोलती थी आज आप ये पढ़ा रहे थे ना। तो बहुत अच्छा लगता था, और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत प्रेरणा के स्रोत रहे। तो हम भगवान से बहुत प्रार्थना करेंगे कि भैया को आगे के लिए भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य, यश, बल, आयु सब प्रदान करें, कि जिस तरह इन्होंने अपनी एक पारी को बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, ऐसे ही ये आगे भी अपने जीवन में आगे की जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा सकें। और अंत में भैया की तरफ से मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूँ, पहले मेरी आवाज़ अच्छी थी, अभी थोड़ी सी बैठ गया है लगा, तो फिर भी मैं बोलना चाहूँगी। 2 लाइनें भैया की तरफ से। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा मांगे वफा, रहे ना रहे हम। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम Okay.
पुराने अजीज दोस्त, लगभग 35 साल से हमारी उठ बैठे, श्री मुकेश कपूर जी, मुझे बात ये कहते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि हम एक प्राइवेट फील्ड में मिले थे। सफर वहां से शुरू हुआ और आज रिटायरमेंट का समय आ गया। मैं एक बार फिर इनके पास मौजूद हूँ, मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। मैं इन सभी के यहाँ पहुँचने पर इनके रिश्तेदार इनके भाई रमेश जी मेरे बीएससी के जूनियर रहे हैं और मुकेश जी हमारे सीनियर। कमाल का कॉम्बिनेशन हमने देखा। कॉलेज से लाइफ शुरू हुई और जॉब के साथ साथ ये संपन्न हो रही है। मैं सभी भाई अपने परिवारजनों का कहूँगा, इनका सबका मैं स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि इन्होंने पारिवारिक संबंधों को सहज स्वीकार किया और बरकरार रखा। आज का जो ये समय है, हालांकि हमारे भाई मुकेश कपूर जी, जैसे मैंने देखा बड़े नज़दीक से, पूर्व वक्ताओं ने बताया भी है यहाँ खड़ा होकर के, बहुत ही इमोशनल और गजब के हार्ड वर्किंग टीचर रहे हैं। इनकी कोई भी कमिटमेंट मुझे याद नहीं कि जो इन्होंने पूरी ना की हो। कभी इन्होंने बैकआउट नहीं किया किसी चीज़ से। और हम ये भी संस्था में मिले थे, मेरा समय वहाँ बहुत कम रहा, 1-1.5 महीना। मैं बाद में गवर्नमेंट स्कूल में आ गया। मैं तो इतना कहूँगा कि रिटायरमेंट का समय बड़े सौभाग्य से मिलता है। कितने लोग इस सफर में रास्ते में छूट जाते हैं। आप भी जानते हैं, ये तो बात सुनिश्चित हो जाती है जब हम कोई भी सेवा ज्वाइन करते हैं, सर्विस ज्वाइन करते हैं, उसके साथ ही उसी दिन लिख दिया जाता है सुपरनेशन का टाइम क्या है, रिटायरमेंट का क्या समय रहेगा। सर्विस बुक के पहले पेज पर ये एंट्री कर दी जाती है। हालांकि उस समय पता किसी को नहीं होता कि कितना लंबा सफर हमारा चलेगा, कितना नहीं चलेगा। पर मैं ये बात मानता हूँ, इन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। ममता जी ने भी जैसे बार बार बताया कि बड़े नेक दिल इंसान हैं। ये सच बात है, कोई बड़ाई नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रशंसा करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल कोई मामला ही नहीं इनके बीच में। मैं ये बात इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन जो है एक यात्रा है। जीवन रूपी इस यात्रा में हार जीत का कोई सवाल नहीं होता है। ये अनुभवों की कहानी है। इंसान के जीवन को कई भागों में बांटा गया है, पर यदि हम उसे प्रैक्टिकली देखें तो उसकी 3 फॉर्म है। एक उसकी स्टूडेंट्स लाइफ है, एक यूथ पीरियड या अर्निंग लाइफ है, एक आफ्टर रिटायरमेंट जिसको कहते हैं सर्विस ऑफ सोसाइटी लाइफ है। इन्होंने तीनों में बखूबी अपनी भूमिका निभाई है और जिस जर्नी को इन्होंने शुरू किया था, जो डेस्टिनेशन इन्होंने फिक्स किया था, जो नेचर ने, गॉड ने, परमात्मा ने, इन्होंने वो इनको मुकाम आज मिल चुका है। मैं इतना ही कहूँगा, आज समय थोड़ा हमारा इस प्रकार लेट लतीफ जरूर हो गया प्रोग्राम, जिसको खींचना था। कहने के लिए बातें बहुत हैं क्योंकि हमारे व्यक्तिगत अनुभव बहुत हैं। मैं परमात्मा के श्री चरणों में ये विनती करता हूँ कि प्रभु इन्हें 3rd पार्ट ऑफ लाइफ जो है, मैंने इसको 2nd पार्ट माना है, जिसको इन्होंने पूरा किया, बड़े शानदार तरीके से पूरा किया है। जिंदगी में
इंसान बेदाग होकर चला जाए, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। इंसान कदम कदम पर आप पर कोई आरोप लगते रहते हैं, परंतु इनके जीवन में मुझे कहीं पर भी कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिली। हम प्राइवेट में भी इकट्ठे थे, सरकारी में भी हम मोबाइल में इकट्ठे रहे कई साल, और अंत में सफर के फिर यहाँ ददलाना में फिर मिलन हो गया। बड़ा मेहरबान है खुदा जिसने ये तकरीर बख्शी है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे में मुखालते भी हों तो उस बरसात की तरह हों जो बरस करके बंद हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। हमारे में लगाव या प्रेम इस प्रकार हो जो हवाओं की तरह बहती है, नजर आकर के नजर ना आकर के भी आपके पास रहती है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे भेदभाव किसी भी रूप में हो, हम जो है मानसिक रूप से कहीं न कहीं बढ़ जाते हैं, विचारों से बढ़ जाते हैं, परंतु सद्भावना के साथ में जुड़ना भी आना चाहिए। तो इंसानियत का परम कर्तव्य यही है कि हम साथ साथ चलें, अन्यथा कहा गया है सुगंध के बिना पुष्प, सुनने की बात है ये प्लीज, सुगंध के बिना पुष्प, दिशा के बिना कोई कर्तव्य, खुशी के बिना जीवन, सब निरर्थक माने जाते हैं। इसलिए मित्रों सभी खुश रहो। मैं प्रभु के श्री चरणों में मुकेश कपूर जी के रिटायरमेंट के बाद आगामी जीवन के लिए ये विनती करता हूँ कि उनका जीवन चमके, आगे बढ़े, वो स्वस्थ रहे, विशेष करके जो खास जरूरत पड़ती है, और वे सदा अपने परिवार के साथ जो भी उनके लक्ष्य हैं उनको पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ समय ध्यान में रखते हुए मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। श्री नरेश अत्री सर ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में अपनी बात कही, और यह बात बिल्कुल सत्य है कि जेडीटी होना, टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर, लेक्चरर कुछ भी आप बन जाते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे दिल के इंसान नहीं है तो आपकी अचीवमेंट जीरो है। लेकिन सर ने, मुकेश सर ने पीएचडी नहीं, हो सकता उससे भी कई अगर ऊंची बड़ी डिग्री होती है तो वो लोगों के दिलों में ली है, और ये बिल्कुल एक शाश्वत सच्चाई है कि सर ने अपने कामों से बच्चों के और अध्यापकों के दिलों का राज किया है। अब मैं विद्यालय परिवार के मुखिया हमारे प्रिंसिपल साहब से विनती करूंगी कि वो आकर अपने विचार आदर और मान के लोग, इनके पिताजी, हमारे पिताजी, इनकी माताजी, हमारी माताजी, और गुरु साहब, आपका व्यक्तित्व, आपका परिवार, इन सब का यहाँ पहुँचने पर हम धन्यवाद करते हैं। हमारा आपके साथ लगभग 1.5 साल का मेलजोल रहा, लेकिन आपकी जो व्यक्तिगत जीवन की जीने की कला है वो विशेष रही। वो भगवान ने आपको बचपन से ही, आपके पिताजी ने आपको लाड प्यार से संस्कार दिए और वो आपके जीवन में साकारित हुए। ऐसे ही ये एक से दूसरे में चलते हैं। तो धन्य है आपके माता, जिससे मेरा बेटा भी आज कामयाब हुआ है। मुझे भगवान आपने इतना वैभव दिया, संपन्नता दी, इन सब के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें। और जीवन में संस्कारित बढ़ना, ये माँ बाप के ऊपर, शिक्षा के ऊपर अपना जीवन भी सही सार्थक रहे, एक प्रयास होता है। तो इतनी मेहनत आपने की, हमारी तरफ से जो जलपान का आयोजन आपको कराया जा रहा है आप स्वीकार करें, और सारा इस प्रकार के जीवन में, वातावरण में आप विद्यालय में रहे। शिकायत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, फिर भी यदि किसी से किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा होगा तो उसको यहीं छोड़ करके जाएंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जीवेम शतम शतम नंदाम शतम शतम मोदाम शतम शतम। आप 100 वर्ष की आयु जिए, आनंद से जिए, सुख से जिए, इतनी भगवान आपको हृदय में ताकत दे। जय हिंद।
हॉल में उपस्थित मुकेश सर, मिसेस मुकेश, पेरेंट्स मुकेश सर के और बाकी फैमिली मेम्बर्स, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश सर से ये बात प्रिंसिपल सर ने बहुत अच्छी कही है कि रिक्वेस्ट है कि जाने अनजाने स्टाफ मेंबर्स में से किसी की कोई भी बात कभी भी थोड़ी बहुत अगर महसूस हुई हो, क्योंकि सर कभी किसी को कहते ही नहीं कुछ भी, मैंने अपने अंदर ही रखते हैं सब बातें, लेकिन उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं कि दिल से ना लें और हमें हमेशा याद रखें जैसे कि हम याद रखेंगे, क्योंकि वो याद रखने लायक उनके सारे काम है, व्यवहार है, संस्कार। अब मुकेश सर प्लीज। प्रिंसिपल साहब और मेरा स्टाफ रूपी परिवार, आपने मेरे और मेरे परिवार का जो इतना मान और सम्मान बढ़ाया है, इतना प्यार दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अब जो भी यात्रा मालिक की दया से मेरी रही है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद उस परमात्मा का ही करूँगा जिसने मुझे जन्म दिया। उसके बिना तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते अगर उसका धन्यवाद ना करें। मैं कई बार अपने साथियों के साथ कर लेता हूँ बात कि मैं कहूँ उन बच्चों को देखो जाकर, कल बेटी से बात कर रहा था, मैं कहता हूँ 10-10 हज़ार रुपये पर नौकरी कर रहे हैं और हमारे ऊपर मालिक ने इतनी मौज कर रखी है, हम फिर भी सोचते हैं पता नहीं भाई कोई कमी रहेगी या कमी रहेगी। शुक्र करना चाहिए। पहला मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमात्मा का, फिर माँ बाप का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी पहली गुरु मेरी माँ का, मेरी दूसरी गुरु जो नरेश सर की भी गुरु रही है, मेरी बुआ जी आज आ नहीं सके, उनके घर मुहूर्त था, एक हवन का प्रोग्राम था उनका। फिर मेरे भाई का जिसके साथ मेरी खट्टी मिट्टी यादें बहुत रही है, मेरी भाभी का, मेरी बेटियों का, मेरे बेटों का, मेरी बहनों का, मेरे भतीजा जी का, मेरे भाई का, मेरे भाई इंद्रजीत लाठी का, तन्नू का, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी वाइफ ममता। देखो मैं अपने स्टाफ के साथ, निर्मल मैडम बैठी है और भी मेरे साथी हैं, मैं सबको भी कई बार बात करता हूँ, सर मैं तो लल्लू आर्मी था, मेरी तो आज तक ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मुझे ये नहीं पता इस शर्ट के साथ क्या पैंट डालनी है, इस पैंट के साथ क्या शर्ट। 31 साल हो गए नौकरी को, जब से मेरी ज़िंदगी में आई है मुझे पैंट शर्ट जो है वो सारी चीज़ें रेडी मिलती है। कोई दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन जो है ना सब्जी और रोटी मुझे घर से निकलने से पहले तैयार ना मिलती है, तो सबसे बड़ा धन्यवाद। पहले तो माँ ने ममता को भी दी है, फिर इस ममता ने दी। बात ये है भाई, आता अभी कुछ टाइम पहले जो है ना ये कहने लगी भाई कुछ तो कर लिया करो। मैं कहा क्या मतलब? मैंने इनको ये कहा कि पहले तो मेरी माँ ने लाड प्यार से बिगाड़ा मुझे, भाई वो कुछ नहीं करने दिया ना मुझे ना मेरे भाई को। हमारा तो ये है, घर आया क्या माता पानी लिया, क्या माता सब्जी लिया, गलत है। मैं देखो मैं मानता। फिर ऐसे ये बीबी आई, इन्होंने भी इतना लाड प्यार दिया, क्या माता पानी लिया, लिया रोटी लिया। भाई हमने तो घर जाते ही कपड़े उतारने और बेड पे टीवी लगा के देखने लगे। तो मैंने एक छोटी सी ड्यूटी ली है, सारे से मैंने अपने साथियों को बात करी है। मैडम आती है 6:30 बजे के करीब, मैं पहले पानी पेश करता हूँ और फिर उसके बाद कॉफ़ी या चाय, सिर्फ 2-3 आदमियों की आती है बनाने, मुझे ज़्यादा नहीं, फिर वो बाकी बदलाव करने का पूरा मौका है। ठीक है। और अब जो है ना मैंने ये सोचा ये है तो क्या टाइम में टाइम, वैसे बच्चे मेरे कई बार कह देते हैं तो बेटा विषय या बड़े सारे साथी अब करोगे क्या? मैं कभी बात सुनो, मैं कल भी बात कर रहा था, मैं कभी जब मैं वहाँ पर 10th करी तो मेरा एक पड़ोस में साथी था, कहता मुकेश यार नॉन मेडिकल ले लेते हैं। मैं कहा ये क्या होता है नॉन मेडिकल? कहता इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है। मैं कहा मैं कर लूँगा। कहता कर ले। मैं ले ले भाई। हुआ क्या, पहले साल ही उद्यम में पढ़ गए, इतना पढ़े, पेपर में जाके दिमाग घूम गए, पहले साल फेल हो गए। पिताश्री मेरे कहने लगे होटल लाइन है, सालों की नौकरी मिलनी है, होटल संभाल। मैं अपनी मदर के संपर्क में रहा हूँ, इन्होंने सत्संग पे जाना, हम भी पीछे पीछे वैसे
कपूर साहब तो कुछ हो जाते थे, पर जैसे हमने अपने टाइम में लड़के पीटे ये भी पीट गए। कहने लगे तुम मेरे ऊपर गए नहीं, तुम तो माँ पे गए। मैं कहता था बाहर से बेटे मेरे कुछ कर गया है, आगे गए कपूर साहब बड़े मुंडे मेरे मुंडे में कुट गए, उसी तक कुट खा के आते। चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से जो है ये दौर चलता रहा। मैं इन सभी का, अपने परिवार का, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अब मेरे बेटे और एक दो यहाँ मेरे और बेटे, वैसे तो सारे जितने छोटे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, भाई बहन हैं, उनके साथ खूब प्रेम प्यार रहा है। अंकित और स्पेशली रविंदर, पीछे हम एक दिन बैठे थे तो ये गाना गुनगुनाने लगे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझे हम पीते रहते हैं कुछ से कुछ, बाकी भी मेरे साथी ऐसे हैं। और सोच के तो पता नहीं क्या है, तो मेरा कागज नहीं बन रहा, गुम हो गया। तो अनफिल्टर्ड चल रहा है, प्लीज बुरा न मानना, कोई बात ऐसी क्या था। ये कहने के पल दो पल का शायर, और सुनाना तो इन्होंने भी खुद था, लेकिन टाइम का समय मीटिंग में जाना है, कुछ हम लेट हो गए, हो ही जाता है ऐसे। तो सुनाना तो रविंदर जी ने था, बाकी चलो कोई बात नहीं। रविंदर जी के लिए ये तो जरूर कहूँगा, वैसे तो आप सारे स्टाफ ने, विक्रम सर ने, मैडम ने, और भी मैडम जो गई हैं साथ, और सारे स्टाफ ने, तरसेम सर, दूसरे साथियों ने, इतना जो प्रिंसिपल सर की अगुवाई में, हो सकता है मेरा किसी का नाम रहे थे, ममता मैडम ने गए, सहयोग सभी का है, ये नाम कुछ एक निकल गया, प्लीज माइंड ना करना। और रविंदर सर ने जो ये डेकोरेट किया और 4 दिन से लगे पड़े हो, सजाने में, वो सजाने में, प्लीज उनके लिए तालियां। पीछे जब ये नए नए आए थे तो कहने लगे, मेरी मोबाइल से उन्होंने फोटो खींची, अरे सर फोटो बनाऊंगा। मैंने सोचा मैं फिर नहीं यार, पहले साहब के शुरू करो, साहब से शुरू करो फोटो। अरे नहीं सर, पहले तो मैं आप ही बनाऊंगा। मैंने सोचा मजाक कर रहा हूँ, ये तो सुबह जो है ना फोटो ले आए बना के मेरी, और मैंने सर आपके प्यार को जो है ना फ्रेम में करवा के रखा हुआ है, फ्रेम में करवा के रखा हुआ है, तो ऐसे ही रहेगा सर हमेशा। अब बात आती है गाने की, तो गला तो बैठा हुआ है ना सर, सुनाना पड़ेगा सर एक। अभी एक्चुअली उसमें जो आवाज़ थी जिंदगी के सफर में, वो आपकी भाई की थी, वो मेरी थी। बाकी वो क्योंकि इसका वॉल्यूम हाई था, वो आ नहीं रही थी, तो कोशिश करता हूँ अपने कर्कश आवाज़ में कुछ आने की, बाकी चलो ट्राई करता हूँ। और किसी मेरे साथियों का कुछ नाम लेने में रह गया, और मैं प्लीज आप ये वो ना लेना, आप मेरे सारे, आप सारे मेरे तरसेम सर, आप सारे मेरे तरसेम सर, आप सारे मेरे नज़दीक और दिल में। मेरे साथी कईयों के साथ मुझे 2-2, 3-3 जगह नौकरी करने का मौका मिला। ये सर ने अभी बताया, ये तीसरी जगह हमारी। ये सुलेख बंधु दंपति हैं, तरसेम सर, इनकी मिसेज। 6 साल रहा मैं तरसेम जी के साथ, 6 साल रहा नीतू मैडम के साथ, 2 साल अब दोनों के साथ इकट्ठे, यानी 14 वर्ष इस परिवार के साथ गुजारा मैंने। उनके साथ भी दूसरा स्कूल है, सविता मैडम के साथ पहले तेजिंदर सर थे, और अगर मैं किसी का नाम भूल गया, मेरा दिमाग काम कम कर रहा है, और भी कोई साथी है उनके साथ में इकट्ठे, सतीश सर, मालती मैडम, इनके साथ मैं रहा हूँ। पहले भी बहुत प्यार रहा है, अब भी बहुत प्यार है, इन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया। अब बात आती है गाने की, आवाज़ तो मेरी खराब है, लेकिन कोशिश करता हूँ। हाँ तरसेम जी बोलो ना, इरशाद तो क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड नहीं, ऐसे नहीं सर, अच्छा जैसे आप मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है, मैं पल दो पल का शायर। मुझसे पहले कितने शायर आए और चले गए, कुछ में जाकर चले गए, कुछ बात अपनी कहकर चले गए। कल कोई मुझको याद कर, कोई मुझको याद कर,
मैं तुमसे जुदा हो जाऊं, वो आज तुम्हारा किस्सा। शब्दों का इधर हो गया। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर। और लास्ट में अब इससे अलग कोशिश करूंगा, रोऊं ना मैं। मुकेशी का मामला मुकेशी का चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। पिछड़ा ये दिल पर पिछड़ न जाए कहीं हम और तुम, और सुनी सुनी सी लगे मेरे मेरे प्यार की डगर। हम लोग आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, अब अलविदा कह देना। नहीं सर, अलविदा नहीं अलविदा कह देना। हंसते हंसते यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, अब अलविदा कह देना, अब अलविदा कह देना। थैंक यू। अंत में मैं पूरे सारे स्टाफ का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरा और मेरे परिवार का इतना मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मेरी खुशी अब ये अधूरी है। मैंने सतीश जी को कहा था, मैं कहा हमारा 50 का स्टाफ है, 50 के 55 चाहे आ जाए, एक बंदा कम नहीं रहना चाहिए। ये आपकी खुशी है। कल जो है आनंद गार्डन में लंच का प्रोग्राम है 1 बजे। प्लीज 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 मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्सनली कहते हो, नाम लेता हूँ मैं सभी को। बोलो सभी रहना। सतीश सर, प्राइमरी की आपने, इधर लेडीज विजया मैडम, ममता मैडम आपने ये संभालना है, इधर जेंट्स में प्रीतम सर, नरेश सर, प्रिंसिपल सर, सभी को रहना सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना। अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना। हो अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना। अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना। आओ रल में खुशी मनाइए, हंसिए नचिए टप्पिए गाइए, वेला मुड़ के नहीं लभना। हो अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना। अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना। खुशियां मनाइए,
Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। दिल ने बनाए कितने बहाने, दूजा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं।
मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ओ तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे, ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी। लगे चेक नहीं वड्डे चेक नहीं, उत्ते आले नाल लाई बैठा यारी। जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी। लगे चेक नहीं वड्डे चेक नहीं, उत्ते आले नाल लाई बैठा यारी। रखी अख नहीं वैरी कख नहीं, गेम घूमदी आ बैठे फोन चक नहीं। पिछे जग नहीं लाई लग नहीं, लगी कईयां दे आ उत्ते तक अग नहीं। हाँ कौड़ा लगदा सवा उच्छी जरा जाके नाम चले थां थां। जट तां पहली मल्ली बैठा था, अगे कड्डिया भलेखे कई वारी। जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी। लगे चेक नहीं वड्डे चेक नहीं, उत्ते आले नाल लाई बैठा। जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी।